الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا خلق خلقا حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قال بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري في كتاب الأدب. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، اسلام ہر کسی کا حق جو جائز طور کے پر ہونا چاہیے اسے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے حق حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے پر کیا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ بتاؤ معاذ، اللہ کا حق بندوں کے پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. اگر بندوں نے یہ حق نہیں ادا کیا تو اللہ کی جناب میں انہیں پکڑا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. ہاں، اب بندوں پر اللہ کا حق کیا، اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا. تو بندوں کے پر، بندوں کا حق اللہ کے پر یہ ہے کہ جس نے بھی توحید کے پر اپنے آپ کو قائم رکھا، صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ اسے عذاب نہ دے، اسے جنت میں داخل کرے. یہ بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کو اور اللہ کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ اللہ کے حقوق سے متعلق باتیں تھیں. اب بندوں کا بندوں سے متعلق حقوق ہے جسے حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں یا بندوں کے حق میں، جبکہ ہمیں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کے حقوق یعنی عبادات اور بندگی کے پر خوب توجہ دیں اور بندوں کے جو حقوق نکلتے ہیں اس کے پر کوئی توجہ نہ دیں، یا ایسا ہو جائے کہ ہم صرف بندوں کے حقوق کے پر توجہ دیں اور اللہ کے حق کو فراموش کر دیں. نہیں، بلکہ دونوں جانب توجہ دینا ہوگا.
इस्लाम अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ साथ बंदों के हुकूक की अदायगी का भी हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से चंद रोज़ कबल जब नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद अपने आप को मिंबर के पर पेश किया और पेश करने के बाद कहा कि देखो, अगर मैंने किसी का कुछ कर्ज लिया है या किसी के पर ज़्यादती की है, आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वो अपना बदला ले ले। इतने में एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे 3 दिरहम आपकी तरफ कर्ज हैं, बाकी हैं, आपने अदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गवाह, कोई सबूत तलब नहीं किया, फौरी तौर के पर अपने चचाज़ाद भाई हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि इसका कर्ज अदा कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पर क्यों पेश किया? इसका मतलब यह है कि हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक में कोई कोताही हुई है तो इस बारे में नबी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तभी आपने दुनिया में अपने मामलात को क्लियर किया ताकि अल्लाह की बारगाह में पकड़ ना हो सके। मुस्लिम की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि अगर किसी का दुनिया में कुछ लेन देन है और वो बाकी रह गया है तो दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी करा ले, उस हक़ को अदा कर ले, इससे पहले कि ऐसा दिन आए जहां दीनार और दिरहम यानी रुपये पैसे नहीं काम आएंगे, बल्कि वहां बंदों के अज्र व सवाब को लेकर दूसरों को कन्वर्ट किया जाएगा। हमें हदीस मुफलिस बताई जाती है, मुस्लिम की रिवायत। हदीस मुफलिस क्या है? मुफलिस कंगाल शख्स को कहते हैं, और कंगाल का मतलब गरीब नहीं होता है, बल्कि जिसके पास बहुत रुपया पैसा था लेकिन उसने अपनी सारी दौलत को फजूल किस्मों के कामों में ज़ाय और बर्बाद कर दिया और बिल्कुल कंगाल हो गया, 1 रुपया उसके पास बाकी नहीं बचा। ये कंगाल है, मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, बताओ मुफलिस तुम्हारे नज़दीक कौन है? सहाबा ने कहा कि अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता, कि अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान मुफलिस वो होता है, कंगाल उसे कहते हैं जिसके पास रुपये पैसे ना हो। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा? जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े, ज़कात, जो भी नेकी उससे बन सकी वो सारी नेकियां लेकर आएगा। सुम्मा याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा, और इस हालत में आएगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी के पर बोहतान तराशी की होगी, किसी के बारे में झूठ कहा होगा, किसी का माल नाजायज़ तरीके से खाया होगा या किसी को मारा होगा। तो ये सारे मज़लूमीन जिन्हें दुनिया में इंसाफ नहीं मिल पाया, हो सकता है कि इंसान दुनिया में ताकतवर हो या हमारे एतबार से अबाश लोग होते हैं जो गुंडागर्दी करने वाले, अपनी ताकत का नाजायज़ मुजाहरा करने वाले, जुल्म ज़्यादती करने वाले। ठीक है, दुनिया के अंदर अगर उसका इंतकाम बदला नहीं मिल पाया तो क़यामत के दिन बेलाग इंसाफ होगा। ये सारे मज़लूमीन कतार लगा कर आएंगे और वहाँ रुपये पैसे काम नहीं आएंगे, बल्कि इसकी जो नेकियां होगी, इन नेकियों को लेकर जितना जुल्म उसने किया होगा उन सारे मज़लूमीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। अब सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो नमाज पढ़ने वाला होगा, वो ज़कात देने वाला होगा, रोज़ा रखने वाला, लेकिन साथ ही साथ बंदों पर जुल्म करने वाला होगा। और ये सारे मज़लूमीन आएंगे और अपने अपने जुल्म का जितना उन लोगों के पर जुल्म किया है बदला लेंगे और वो बदला उन्हें अज्र सवाब की बुनियाद पर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इस आदमी के नामे अमाल की सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी। अब अल्लाह इंसाफ करेगा, जबकि मज़लूमीन बाकी हैं, अभी इसके पास नेकी नहीं है। अब क्या किया जाए? अल्लाह इंसाफ करेगा। कैसे इंसाफ करेगा? इन मज़लूमीन के पर अगर किसी गुनाह की बुनियाद के पर कुछ सज़ा होगी तो उनके पर जितना जुल्म हुआ है उतने इन लोगों ने जितना गुनाह किया है तो जुल्म के बकद्र उतरे गुनाह इस जालिम के सर मोड़ दिए जाएंगे कि उसकी सज़ा तुझे भुगतनी होगी। इस तरह इंसाफ होगा।
اور یہاں تک کہ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، دوسرے کے گناہ اور اس کی سزا اس کے پر لاد دی جائے گی تو بچے گا کیا؟ یہاں تک کہ بالکل کنگال ہوگا اور اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے قیامت کے دن اگر ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، ان ساری نیکیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور وہاں مظلومین کے قطار ہے جن کے پر ہم نے ظلم اور زیادتیاں کی، یعنی حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، تو کیسے ہم بچ پائیں گے؟ یہ نیکیاں جو ہم نے کمائی ہیں یہ ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے پائیں گی، بلکہ یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی اگر ہم نے بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کیا ہوگا۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو جاننا، سمجھنا، اسے ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ پرندہ یہ اپنے دونوں پنکھوں کے ذریعے پرواز کرتا ہے۔ اگر اس کے دونوں پنکھ صحیح ہیں تو یہ برابر پرواز کرے گا، اور اگر اس میں سے ایک پنکھ بھی ٹوٹ جائے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے کہ اگر ہم نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کا جو حق عبادت کے ذریعے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ادا کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ اگر یہ حق نہیں ادا کیا تو اللہ کے یہاں پر باز پرس ہونے والی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پنکھ کمزور ہو گیا، ہم پرواز نہیں کر سکتے، یا اگر ہم نے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، شرک نہیں کیا، بدعت، خرافات، ان ساری چیزوں سے محفوظ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادتیں بھی کی ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے، تب بھی ہماری باز پرس ہوگی۔ حدیث مفلس سامنے رکھیے جس کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر گرفت ہونے والی ہے۔ اب یہاں یہ جو بنیادی اور تمہیدی بات تھی اللہ کے حق اور بندوں کے حق سے متعلق، تو ہمیں بندوں میں جو حقوق ہوتے ہیں، شریعت نے جو حقوق رکھے ہیں، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں یہ جو موضوع آپ کے سامنے صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اسے لے کر جو کھڑا ہوا ہوں اور کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس لیے کہ ابھی لگن سرا ہے، شادیوں کے موسم چل رہے ہیں، نئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں دو طرح کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایک وہ رشتہ داری جو ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں کے ساتھ ماموں ہیں، اور ننیحالی رشتہ داریاں ہیں، ایک ددیحالی اور ایک ننیحالی۔ یہ رشتہ داری ایسی ہے جو ہم پیدا ہونے کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور ایک رشتہ داری جو ہوتی ہے جو ہم اپنے اعتبار سے طے کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور وہ سسرالی رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی رشتہ داریاں، ایک انسان جو پیدا ہونے کے ساتھ لے کر آتا ہے، اور ایک رشتہ داری جو وہ قائم کرتا ہے رشتہ داری سسرال کی بنیاد پر۔ یہ دو الگ الگ طرح کی رشتہ داریاں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ خاص طور سے رشتوں کو جوڑنے، انہیں قائم رکھنے کا خصوصی حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سماجی جانور ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے، ہم بغیر انسان کے نہیں رہ سکتے۔ ہم نہ تنہا زندگی گزار سکتے ہیں، نہ سماج سے کٹ کر، نہ رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے، نہیں۔ اور رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں دھرموں کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اگر ہمارا باپ مشرک ہے، ہمارے اپنے مذہب کے پر نہیں ہے تو ہم رشتہ داری کو کاٹ دیں گے، نہیں، بلکہ رشتہ داری وہاں بھی نبھانا ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی مشرکہ، حالانکہ ابھی وہ شرکوں کے پر ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیا میں ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل رشتہ داری کو جوڑو۔ آپ نے مشرکین مکہ کو بھی کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے ان رشتہ داریوں کو میں نبھاتے رہوں گا، یہ نہیں کہ کفر اور شرکوں کی بنیاد کے پر میں رشتہ داری کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، نہیں،
बल्कि रिश्तेदारी रिश्तेदारी होती है, गरचे धर्म जुदा जुदा हो, मजहब अलग अलग हो, लेकिन रिश्तेदारी अपनी जगह पर कायम होती है, उसे निभाना होता है। सिला अरबी ज़बान में कहते हैं जोड़ने को। रहमी दरअसल रहम मादर से बना हुआ है, यानी जो माँ के ज़रिए रहम के ज़रिए रिश्तेदारियाँ कायम होती हैं। और ये उमूमी तौर के पर सारे रिश्तों के बारे में कहा जाता है। रिश्तेदारी इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर क्या है? इस्लाम ने रिश्तेदारी को जो अहमियत दी है, अगर आप अहादीस को पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमारे यहाँ रिश्तेदारी का जो तसव्वुर है बड़ा कमज़ोर है या इंतहाई महदूद है, जबकि इस्लाम ने इसे बहुत वसी और बहुत दूर तक लेकर गया है, बहुत दूर तक पहुँचाया है। पहली बात, इस्लाम में रिश्तेदारी का तसव्वुर, मैंने खुतबा मसनूना के फ़ौरन बाद एक रिवायत पेश की थी बुखारी की। इसमें रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला इज़ा खलक़ खल्क़न हत्ता इज़ा फ़रग़ मिन्हुम, कि अल्लाह ने जब सारी मखलूक़ात को पैदा किया और पैदा करने के बाद फारिग हो गया, क़ामतिर रहीम, रिश्तेदारी अल्लाह के सामने खड़ी हुई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीगर तमाम मखलूक़ात की तरह रिश्तेदारी को भी पैदा किया है। ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने ज़िंदगी को पैदा किया, अल्लाह ने मौत को पैदा किया। सूरह मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कौन बेहतरीन अमल करने वाला, कौन नबी की सुन्नत के मुताबिक और कुरान के अकीदे के मुताबिक अपने आप को चलाने वाला है। तो अल्लाह ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, यहाँ तक कि हमारे आमाल भी अल्लाह की मखलूक हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब करते हुए कहा था सूरह साफ़ात में, खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया है और तुम्हारे अमल को भी पैदा किया है। तो अमल भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें हैं ये सब मखलूक है, वो खालिक है। तो अल्लाह ने जब तमाम मखलूक को पैदा किया, रिश्तेदारी अल्लाह के सामने खड़ी हुई और खड़ी होकर क्या कहने लगी, हाज़ा मकामुल आइज़ी बिका मिनल क़तिया, कि अल्लाह ये वो जगह है जहाँ रिश्तों को काटने वाला पनाह मांगेगा कि यहाँ खड़ा ना हो सके। यानी रिश्तों को काटने वाला अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुंह दिखाने खड़ा होने के लायक नहीं है। सोचिए कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ने रिश्तेदारी को अता किया कि अगर कोई रिश्तों को काटने वाला है तो वह अल्लाह के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। तब अल्लाह ने कहा कि क्यों नहीं, अमा तरदैन, क्या तो इस बात के पर राज़ी नहीं है, अन असिल मन वसलकी, कि मैं उसे जोड़ूं जो तुझे जोड़े, यानी जो रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करे, वह अक़ता मन क़ता की, और जो तुझे काट दे उसे मैं काट दूं। उसने कहा कि भला क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कि जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्तेदारी को नहीं निभाएगा, रिश्तों को काटेगा, अल्लाह उसे काट देगा। आज हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बात के पर रिश्तों को काट दिया जाता है। भाई भाई के दरमियान रंजिशें, यहाँ तक के बहन भाइयों के दरमियान, यहाँ तक के औलाद और माँ बाप के दरमियान इख्तिलाफात, रंजिशें। हमने रिश्तेदारी को इतना आसान समझा है कि अगर हम रिश्तों को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो याद रखिए अल्लाह हमें नहीं जोड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें जोड़े, अपने करीब करे, हमें काटे नहीं, अपनी रहमत से हमें महरूम ना करे, उसके लिए रिश्तों को जोड़ना होगा। ये इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी का तसव्वुर है। अल्लाह ने इसको पैदा किया, पैदा करने के बाद इसके मुतालबे को पूरा किया कि जो रिश्तों को जोड़ेगा उसके हुकूक अदा करेगा, अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्तों को काटेगा उसके हुकूक नहीं अदा करेगा, अल्लाह उसे काट देगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता या अल्लाह से जुड़ने का, उसकी कुर्बत का रास्ता मखलूक के हुकूक की अदायगी से होता है। ये नहीं कि हम मखलूक की अदायगी ना करें, उनके हुकूक की अदायगी ना करें,
बल्कि अपने भाइयों के बहनों के हक को मार कर बैठ जाए और ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श देगा। हमारे यहाँ बड़ा अजीब मसला है, कुछ फजीलतों की बुनियाद के पर लोग ये समझते हैं, एक तो ये कि दरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बिल्कुल, बल्कि जुमा के दिन कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, पढ़िए। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो मेड इन मदीना है, मदीना का बनाया हुआ, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, आपकी अदालत नबी का, ये नहीं कि कहीं का बनाया हुआ किसी ने बना दिया सब चलाने लग जाए, नहीं, जिसे नबी ने पास किया है वही। अब यहाँ हमारे दरमियान एक दरूद शरीफ है, लोगों के बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, कुछ मस्जिदों के अंदर भी लिख दिया गया है कि अगर कोई इसे जुमा के दिन असर के बाद पढ़ेगा, कुछ उसकी तादाद बताई गई है 100 मरतबा या जितनी भी तादाद हो, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जबकि ना वो दरूद साबित है, ना वो हदीस साबित है, ना फजीलत साबित है। अब यहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसके पर अमल करने के बाद या देगर फजीलतों के पर अमल करने के बाद क्या समझ लिया कि हम तो इतना अमल किए, इतना दरूद पढ़े हैं, वो अपनी नेकियों को काउंट करते हैं। अल्लाह कितनी नेकी देता है वो बेहतर जानता है, हमें नेकियों को शुमार करने का हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह हमारी नीयत के एतबार से तय करेगा कितना अजर मिलना चाहिए, वो नीयत के इरादों इखलास के पैमानों की बुनियाद के पर अजर देता है, हमारे एतबार से नहीं। तो बाज़ लोगों ने इन नेकियों के पर यह तस्वुर कर लिया कि हमने तो इतना कर लिया है, अब भाई का हक मारो, रिश्तेदारों के साथ जुल्म ज़्यादती करो, पड़ोसियों के साथ ज़्यादती करो, कौन पकड़ने वाला है। जबकि मैंने हदीस पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिरहम एक सहाबी की तरफ बाकी थे, फौरी तौर के पर जब उन्होंने मुतालबा किया अदा किया। नबी अपने आप को पेश करके कह रहा है कि अगर बंदों से मुतालिक कोई कोताही है तो नबी को नहीं बख्शा जाएगा, तो आम इंसानों की बिसात क्या है कि उसे बख्शा जाएगा। हुकूकुल इबाद में कोई कोताही कतन बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, अल्लाह अगर अपने हुकूक में कोई कोताही भी है, वो गफूर रहीम है, वो चाहे तो बख्श दे। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, बल्कि वो चाहे तो गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दे, जैसा कि नसई की रिवायत में है कि अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को लाएगा, उसके गुनाह उसके सामने पेश करेगा और कहेगा, देख मैंने तेरे इस गुनाह को दुनिया में लोगों के सामने अया नहीं किया, बल्कि ये मेरी और तेरी हद तक था। बंदा इकरार करेगा कि हाँ अल्लाह ये गुनाह मैंने किया था, वो तो रब्बुल आलमीन, उसके सामने सारी बातें आया है। तो अल्लाह कहेगा, देख मैंने तेरे इस गुनाह पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा, अब जा मैं तेरे इस गुनाह को बख्श दे रहा हूँ, बल्कि बख्श नहीं दे रहा हूँ बल्कि इसे नेकियों में तब्दील कर रहा हूँ। यानी गुनाह के पर नेकियां मिल रही हैं, गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद बंदा जब देखेगा कि मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं मिल रही है बल्कि अल्लाह उसे नेकियों में कन्वर्ट कर रहा है, तो अल्लाह के सामने अपने मज़ीद गुनाहों का इकरार करेगा, अल्लाह मैंने फ़ला गुनाह किया, फ़ला गुनाह किया, फ़ला गुनाह किया, यहाँ तक कि अल्लाह हंस पड़ेगा अपनी शाया निशान। उसके बाद कहेगा, जा जितने तेरे गुनाह थे सारे गुनाहों को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया और तुझे जन्नत में दाखिल किया। ये रब्बुल आलमीन है, वो मालिक है, चाहे तो सारे गुनाहों को बख्श दे, लेकिन ये अल्लाह से मुतालिक है। बंदों से मुतालिक कोई जुल्म और ज़्यादती भी है, अल्लाह उसे मुआफ़ नहीं करेगा, बल्कि बंदों के ताल्लुक से जो मामलात होंगे उनके हवाले कर दिया जाएगा। और वहाँ बंदा एक नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, चे जाए कि वो बड़े बड़े मामलात छोड़ दे, नहीं, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। इसलिए रिश्तेदारी से मुतालिक या बंदों के हुकूक से मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और अहम बात जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, रिश्तेदारी ये नहीं है कि एक शख्स हमारे साथ अच्छे व्यवहार करता है, हमसे रिश्ता जोड़ता है, गाहे बगाए हमारे घरों पर आकर मुलाकात करता है या कोई मौका पड़ जाता है वक्त देता है, ये तो रिश्तेदारी जुड़ी हुई है। असल रिश्तेदारी क्या है? इमाम बुखारी ने एक दूसरी रिवायत को नकल किया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकत में रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं है जो बराबर सराबर का मामला रखता है कि हमारा भाई अपने घर पे आ रहा है तो हम भी उसके यहाँ पर जा रहे हैं, या कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आ रहा है हम भी उसके यहाँ जा रहे हैं।
असल रिश्तेदारी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलाकिन्नल वासिल, हकीकत में रिश्तेदारी जोड़ने वाला कौन है? अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहीमुहु वसलहा, कि जब रिश्ते काटे जाएं तब जोड़ता है, यानी जो उसे महरूम करता है उसे अता करता है, जो उससे दूर जाता है ये उसके करीब जाता है, जो इसके पास नहीं आता बल्कि इसके ताल्लुक से गलत बातें करता है उसके बारे में अच्छी बातें करता है, ये असल रिश्तेदारी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हमारे यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देने का रवाज है, ठीक है, उसने हमें अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाया, हम उससे बढ़कर उसे जवाब देंगे। ये नहीं कि अगर उसने नहीं बुलाया तो हम खुद उसके घर पर जाकर अपने यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ये असल रिश्तेदारी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारा भाई अगर हमें अपना हक नहीं देता है तो हमारे जिम्मे जो हक निकलता है हम उसको जा कर दें, ये रिश्तेदारी है, ताकि उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो, मजीद दरारें ना पैदा हो। ये असल रिश्तेदारी का मफहूम है, तसव्वुर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मुस्लिम की रिवायत में है एक सहाबी अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से वही शिकायत कर रहे थे जो हमारे यहाँ उमूमी तौर के पर की जाती है। क्या कर रहे थे शिकायत? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इन्ना ली क़राबा असिलुहुम व यक़तऊनी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं मैं उन्हें जोड़ता हूँ वो मुझे काट देते हैं, व अहलुम अनहुम व यजहलूना अलैया, मैं उनके साथ बुर्दबारी नरमी का मुजाहरा करता हूँ, वो मेरे साथ नादानी जहालत का मुजाहरा करते हैं। व उसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया, मैं उनके साथ एहसान करता हूँ और वो मेरे साथ बुराई करते हैं। वही बातें जो आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर चलती है, उस सहाबी ने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से कहा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि वो तुम्हें काट रहे हैं धुतकार दो, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं पलट कर मत देखो, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लइन कुंता कमा कुल्ता, अगर बात वैसी ही है जैसा कि तुम कह रहे हो तो फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो गोया कि तुम उनके चेहरों पर गर्म राख मल रहे हो, यानी उन लोगों की बदतमीजी का जवाब सही तौर पर देकर तुम उन्हें अपनी जिम्मेदारी तो अदा कर रहे हो लेकिन वो तकलीफ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी बदतमीजी का जवाब देना होगा, तुम्हें नहीं, इसलिए कि तुम सही काम कर रहे हो। वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुम मा दुमता अला ज़ालिक, और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मददगार होगा जब तक तुम अपनी इसी हालत पर कायम रहोगे, यानी रिश्तों के काटने के बावजूद उसे जोड़ोगे, बुराई करने के बावजूद उनके साथ एहसान करोगे, जहालत और नादानी करने के बावजूद भी उनके साथ तुम बुर्दबारी से पेश आओगे। ये है असल इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी निभाने का तरीका। हमारे यहाँ रिश्तेदारी को कितना वसी समझा जाता है, कितना वसी। हमारे यहाँ कितने जानते हैं, ठीक है ये हमारा मामाजाद भाई है, चचाजाद भाई है, फूफीजाद भाई है, या थोड़ा सा आगे और हम जानते हैं। इस्लाम में रिश्तेदारी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये नहीं कि ये चंद करीबी रिश्तेदारों को हम लोग जान लेते इतना ही रिश्तेदारी है, ठीक है। रिश्तेदारी इस्लाम के अंदर कितनी गहरी है और इसे कितनी दूर तक देखा जाता है, कितनी वसीउ नज़री के साथ, वो इस हदीस और इस तारीख़ी रिवायत की बुनियाद पर देखिए, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल अदब में नकल किया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी और यही आपके नबी बरहक होने की एक बड़ी दलील है। जो बातें आपने पेशनगोई के तौर पर कही वैसा ही पेश आया। आपकी किसी पेशनगोई, किसी बात के अंदर कहीं कोई झूठ नहीं, हर चीज अपनी जगह के पर सच साबित हुई पूरी सदाकत के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था असहाब किराम को, इन्नकुम सतफ्तहून अर्दा, कि अनकरीब तुम एक ज़मीन को फतेह करने वाले हो, एक मुल्क को पर अल्लाह तुम्हें गलबा अता करेगा। युस्करु फ़ीहिल क़ीरात, जहाँ करेंसी कीरात इस्तेमाल की जाती है। दूसरी ज़मीन, दूसरी रिवायत के अंदर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही अर्दु मिस्र, वो मिस्र की सरजमीन है। हमारे यहाँ जैसा कि करेंसी रुपये के नाम पर इस्तेमाल होती है, कहीं रियाल है, कहीं दिरहम है, कहीं डॉलर है, तो ऐसे ही मिस्र की करेंसी को कीरात कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तुम्हें मिस्र के पर गलबा देगा, मिस्र फतेह करने वाले हो,
और ये मिस्र उस वक्त क्रिश्चियन ईसाइयों के हाथ में था, ये वहाँ क्रिश्चियन की हुकूमत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक, पेशन गोई के मुताबिक ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फस्तौसू बि अहलिया खैरा, मैं वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि भलाई के साथ पेश आना, कोई बदतमीज़ी, कोई ज़्यादती नहीं करना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा, अपने फ़ौजियों को हुक्म दे रहे हैं। आज कानून बना कर रख दिए गए हैं लेकिन कोई अमल नहीं होता है। आज फ़लस्तीन में मुसलमानों पर कितना जुल्म, कितनी ज़्यादती, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बस तमाशा देख रही हैं, अपने आप को ह्यूमन राइट्स का जिम्मेदार बनाते हैं, लेकिन बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। यानी लोगों ने सिर्फ एक ढकोसला, बहरूप इस्तेमाल कर लिया है। हकीकत यह है कि इन लोगों के ज़हन दिमाग में और इनके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर रहम नहीं है। एक तरफ तो अगर एक कुत्ते को, पिल्ले को कुछ हो जाता है उसे हाईलाइट किया जाता है, मीडिया में पेश किया जाता है, जानवरों के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं, और दूसरी तरफ इंसानों के पर इंसान मारे जा रहे हैं लाखों की तादाद में, इनके माथों के पर सलवटें नहीं आती, इनके जैसा जानवर दरिंदा आपको नजर नहीं आएगा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अहकामात दिए। जंग के मौके पर भी जब वहाँ पर सहाबा गए, मिस्र फतेह हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वहाँ के लोगों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्न लहुम ज़िम्मतन व सिहरा, इसलिए कि उनके साथ तुम्हारी दोहरी रिश्तेदारी है। दोहरी रिश्तेदारी कैसे? एक तो ददिहाली है और एक ससुराली रिश्तेदारी है। ये दो रिश्तेदारियाँ कैसे थीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं, और आपकी दादी यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा मिस्र की रहने वाली थी, मिस्री थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरा ननिहाली रिश्ता है और नबी होने की बुनियाद पर मेरा उन लोगों से रिश्ता है, उस रिश्ते का पास लिहाज तुम्हें भी करना होगा। तकरीबन 3000 साल पुरानी रिश्तेदारी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया। और ससुराली रिश्तेदारी क्या? हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, जिनके बतन से हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, जो 18 महीने की उम्र में इंतकाल कर गए, ये हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, और ये भी मिस्री थी, क़िब्ती थी। तो ये दो रिश्तेदारियाँ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूर की रिश्तेदारी जो कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है, और एक करीबी रिश्तेदारी, ससुराली रिश्तेदारी जो कि हज़रत मारिया क़िब्तिया से जुड़ी हुई थी, दोनों रिश्तेदारियों का हवाला दिया। चुनांच जब मिस्र फतेह हुआ और फातेह मिस्र हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिस्र में दाखिल हुए, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को उन लोगों के सामने पेश किया। कहा कि हमारे नबी ने तुम लोगों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, यह हमारे नबी की वसीयत है। जब वहाँ के पादरियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुना तो फौरन कह उठे कि इतनी दूर की रिश्तेदारी का पास लिहाज करने वाला सिवाय नबी के कोई और नहीं हो सकता, और यही उनके इस्लाम कबूल करने की वजह बनी। एक हदीस के पर अमल करने का नतीजा क्या हुआ कि बड़ी तादाद में ईसाई, क्रिश्चियन, मुसलमान हो गए, इसलिए कि रिश्तेदारी का पास लिहाज किया गया। यह है इस्लाम में रिश्तेदारी का तस्वुर। एक आखिरी हदीस पेश करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत। इंसानी ज़िंदगी दो बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। वो चाहता है अल्लाह उसे वसी रिज़्क़ अता फरमाए उसके कारोबार में, और उसकी मईशत के अंदर कोई मुश्किल और परेशानी, तंगी ना आए, और दूसरी ये कि अल्लाह उसके उम्र में बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही, जो शख्स ये चाहता है, हर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे, कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए और उसकी उम्र में बरकत दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की दो बड़ी ख्वाहिशात का एक ही हल बताया। कहा फल यसिल रहीमा, उसे चाहिए कि रिश्तेदारी को जोड़े, रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करे। तो ये लगन सरा का मौसम है, नई रिश्तेदारियाँ कायम हो रही है। उस ज़िम्न में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में चंद अहम बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की, ताकि इस्लाम में रिश्तेदारी का क्या
کی اہمیت کیا ہے، مہتو کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ سکے اور ہم اسے جوڑیں، اسے کاٹے نہیں۔ کوئی ہمیں محروم کرتا ہے اسے عطا کرے، کوئی ہم سے دور جاتا ہے ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ یہ اصل رشتہ داری ہے۔ جو کاٹے اسے جوڑنے کی کوشش کرو، جو ہمیں نہ دے اسے دینے کی کوشش کرو، یہی اصل رشتہ داری ہے اور اس کی بنیاد کے پر یہ اسلام کا سب سے عظیم ترین پیغام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پیغام کو اور رشتہ داری کو، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن رشتہ داروں کے درمیان رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، اللہ ان رنجشوں کو، نفرتوں کو ختم کر دے، اس کی جگہ محبت کو پروان چڑھائے۔ اور خاص طور سے آج کے اس موجودہ حالات میں فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، پروردگار ان تک کی رسائی نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور کے پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تو قوی ہے، طاقتور ہے۔ پروردگار ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں، تو ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے درمیان اختلاف، تفریق ڈال دے، انہیں آپس میں بھڑا دے اور ان کے پر ایسا عذاب نازل کر کہ دنیا میں کبھی یہ لوگ باقی نہ رہ سکے۔ پروردگار تو قدیر ہے، قدرت رکھنے والا، قوی ہے، طاقتور ہے۔ پروردگار تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہو، ہر جگہ ان کے جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔